उदास ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, निराश ना हो, जिंदगी का क्या है, कट ही जाएगी। रख नज़र मंजिल पर अपनी, रख नज़र मंजिल पर अपनी, मंजिल खुद चल कर तेरे पास आएगी। हेलो एवरीवन, आई होप this will motivate you. So this is a most wanted video because here I'm going to discuss all those symptoms which reveal that we are depressed and stressed. ये आजकल इतना कॉमन है कि हम किसी भी सिचुएशन में खुद को ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वी से आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड. आई थिंक वी शुड नॉट यूज़ दीज वर्ड्स, but among students, especially those who are preparing for the competitions, I feel उनको material से ज़्यादा ऐसी videos की ज़रूरत है जो उन्हें motivate करें. But firstly, scientifically I'll go to tell you symptoms of depression, कि depression के symptoms क्या हैं. If we stay unhappy all the time, we are sad, we feel hurt, किसी ने कुछ भी कह दिया हमें बुरा लग जाता है. We are in pain, we feel regret, we feel guilty, we feel alone, low all the time, we feel unhappy, we feel no interest in those things which you are doing. And highest level of all that is when we start feeling कि हमारी लाइफ ही इम्पोर्टेंट नहीं है. हम फील करते हैं हमारी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है. इट इज़ टोटली समटाइम्स यू फील दैट हमें ये लाइफ ही नहीं चाहिए. फ्यू स्टूडेंट्स फील दैट वी शुड कमिट सुसाइड. दे स्टार्ट प्लानिंग ऑल दैट और थिंकिंग अबाउट दैट. दिस इज़ द मोस्ट ugly and worst phase of depression. But in my videos, I'm not going to discuss about problem so much because there is no any problem जिसका solution नहीं हो. So let's talk about solution. Solution बहुत छोटी छोटी चीज़ों में समाया हुआ है. Number one, we all need to understand whether we are giving competitions or not. We need to understand I am is more important. Me, हमारी जिंदगी is more important than anything else in the world. हम important हैं. हमारा काम, हमारा टारगेट, हमारा कंपटीशन XYZ belong to us, belong to me. So don't forget you are important, not your result, not what are you doing. आपकी लाइफ, आप सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी हैं आपके लिए. वी नीड टू बी वेरी क्लियर. हमारी जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए वो आजकल लास्ट में आ जाती है, लास्ट में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ कंट्री ऑल्सो, वेयर द यंगस्टर्स, यूथ ऑफ द कंट्री फील्स डिप्रेस्ड, फील्स कि उनकी लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे हैव नॉट गॉट रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड. सॉरी टू से हम हर सिचुएशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू रीच टू दिस लेवल. नंबर 1, you should understand your competition is not with anyone else. Your today should be better than your yesterday. This should be the competition, right? Secondly, when you are appearing for the competition, those preparation, that process is strengthening you. That process will help you to reach to your excellent part. आप अपने बेस्ट तक तभी रीच करेंगे when you will go through that process. So clearing the competition is secondary. Preparing the competition is must, is important. Will improve you. तो आप पार्टिसिपेशन कीजिए, आप अपना एफर्ट्स डालिए, बट डोंट बी डिप्रेस्ड फ्रॉम रिजल्ट. ओके. सेकेंडली,
हमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में. मीन्स वी नीड टू गेट अप अर्ली, वी नीड टू वॉच सनराइज. हमारी नेचर में इतनी खूबसूरती है, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको देखने का. सनराइज गिव्स यू मोटिवेशन, empowers you. So, and optimism, I think whenever I look at sunrise or sky, I feel ocean of opportunities. Sunrise gives us positivity, but we should get up early, we should have that scene, experience that. Eating fresh fruits, having fresh fruits juice, drinking lots of water, by taking deep breath, relax, spending time with yourself. अपने साथ बैठिए, enjoy me time, talk to yourself. अगर आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, you are not getting time or attention, तो I think you are missing कि आप एक genius से बात नहीं कर पा रहे हैं. You are missing that anyone has sent. You also need to talk about possibilities. कहीं भी अगर possibilities की बजाय बीमारियों की, डिजीज़ेस की, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन होती है, तो प्लीज़ लीव दैट. डोंट बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ डिस्कशन और कंपनी. हैव फेथ इन योर सेल्फ. वाई? बिकॉज यू आर क्रिएचर ऑफ गॉड. माई ग्रैंड मदर यूज टू से, अगर भगवान नहीं है तो भी हमें क्रिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस. हैव फेथ इन ऑलमाइटी, जिसने सब कुछ बनाया है. Believe in magics of life. Visualize that you have achieved your aim. Instead of feeling डाटाज ये शो कर रहे हैं, मेरी पॉसिबिलिटी कम है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती. Instead of that, visualize that you have achieved your goal. You can, whenever you are discussing something with your friends, always prefer peace then आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट. बिना मतलब की बहस में मत पड़िए. दिस ऑल्सो ड्रेन्स योर एनर्जी. मिथ्या है वाद विवाद विरोध. हमें क्यों करना है? एंड विनिंग एन आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी अ टारगेट. कहीं भी बैठे हैं, आप रिलैक्स होइए. दैट शुड बी योर एनर्जाइज्ड टाइम, जो आपको एनर्जी देगा, इंस्टेड ऑफ being part of conflict. Be good listener whenever you are in company of others. सुनिए सबकी, करिए अपनी. Don't be influenced from the negative approach of people, those who are discussing the negative things. Now one very important thing, please like my video, comment in case you require, and subscribe our channel. I also have a website, vmteducation.com. Versatile Mentors Tree is my YouTube channel where you can get 10th class CBSE SST syllabus, motivational videos, 12th political science videos, so cartoon videos and all. So lots of material is waiting for you if you require. And please subscribe our channel जहाँ पर मैं आप सबसे मिल पाती हूँ. Fine. So let's continue our topic. After making these little changes, आप focused रह पाएंगे. You will be staying focused on your destination. उसमें 2-3 चीज़ें आप और ऐड करेंगे. Having faith in you, God, all these things we have discussed. You need to let go so many things. Let go. बहुत सारी चीज़ों का स्टोर हाउस बना हुआ है हमारे यहाँ पर, जो हम बार बार याद करते हैं, पेन क्रिएट करते हैं. एनीवन हैज़ सेड यू समथिंग वंस, आप उसे रिपीट करते जाते हैं, हर्ट होते जाते हैं, पेन, गिल्ट. अब बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं. लेट गो. जिससे माफ़ करना है माफ़ कर दीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए एंड मूव ऑन. You can't move or prepare for a competition with the burden of such kind of situations, wordings जो आपको hurt हुई हैं. आप उन्हें कैरी करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो जितना लाइट रहेंगे, लाइट मीन्स डोंट कैरी द बर्डन ऑफ किसी ने आपको ये बोला था, किसी ने आपको ये बोल दिया, लोग क्या कहेंगे. लेट गो ऑल द थिंग्स.
You always have two things. Number one, which you can change. Number two, which you can't change. We try to change the people around us, which is practically not possible. तो क्यों करें ना ये try? Yes, we can change, we can improve. तो यहाँ वर्क करते हैं instead of working here. यूजली हम लोगों पे वर्क करते हैं और खुद को कहते हैं ओके मैं तो ठीक हूँ. नहीं, हमें खुद पे काम करना है और लोगों को इग्नोर करना है. इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर. फाइन. सो लेट गो कीजिए उन सभी चीज़ों को जो आपके माइंड में किसी भी तरह का अटेंशन ले रहे हैं, पेन क्रिएट कर रहे हैं, हर्ट क्रिएट कर रहे हैं. ऑलवेज फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज एज आई टोल्ड यू. फाइन. एंड फॉरगिव एवरीवन. सबको माफ़ कर दीजिए जो आप फील करते हैं कि आप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे आप लेट गो नहीं कर पाएंगे. फाइन. सो फॉरगिव एवरीवन. उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट से आपने ये कहा था, मुझे बुरा लगा, मैं आपको माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ. लेट गो तभी पॉसिबल है इफ़ यू आर फॉरगिविंग पीपल. ओके. रिलैक्स हो जाइए. टेक डीप ब्रीथ. लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आफ्टर दैट यू कैन फोकस ऑन योर मंजिल. फाइन. एंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लियरिटी ऑफ प्रियोरिटीज़. हम बहुत बार हमारी प्रियोरिटी एग्ज़ाम है बट हम अटेंशन कहीं और दे रहे हैं. आपकी प्रियोरिटी मस्ट बी क्लियर. आपकी प्रियोरिटी में सबसे पहला नंबर है आपका खुद का, उसके बाद आपका जो भी टारगेट है. फाइन. बी ह्यूमनिस्टिक इन ऑल द सिचुएशंस. ठीक है. बट आपके विजन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी लाइफ की जो एनर्जी है वो कहाँ कंज्यूम होनी चाहिए, आपका टाइम कहाँ कंज्यूम होना चाहिए. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स विच आर अननेसेसरी, अदर पीपल हु आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हु आर डिस्ट्रैक्टिंग यू, देन आपकी आई यूज टू से कोई भी ऐसी बकेट पानी से भर नहीं सकती इफ़ देयर आर होल्स. अगर उसमें होल्स हैं तो वो सारे होल्स आज बंद कर दीजिए एंड फोकस ऑन योर टारगेट एंड ऑलवेज बिलीव इन गॉड. इफ यू विल अचीव द टारगेट then that is the wish of the God. If you have not achieved, means something more important is waiting for you, which is the plan of God. जहाँ हमारा प्लान काम नहीं करता वहाँ गॉड का प्लान काम करता है. एंड वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ कम नहीं सोचता. राइट. आई होप यू ऑल विल स्टे हम्बल रहिए. स्टार्ट रिसीविंग ब्लेसिंग्स of God, of others, and achieve your target. My best wishes are always there for you. God bless you.